होता है. And one of my student, she has completed the Akashic Soul Journey complete 1 month 15 days course, and now we are practicing from this. So मैं यहाँ पर आप अपने क्वेश्चन आकाशिक से जो पूछना चाहते हैं वो पूछिए, पूरा नाम और क्वेश्चन एक सेंटेंस में लिखिए. I'll pick up that question, I'll tell it to my student, she will do the reading and I'll communicate with you, and I'll also be picking up the cards along with her to match the things. So are you ready? So you can put your name and Akashic में किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो मैंने स्टोरी पे डाला था. आई होप यू माइट हैव गॉन थ्रू दैट. तो हम 1 by 1 लेंगे क्वेश्चंस. अलीशा, आकाशिक कर रहे हैं हम लोग. मैरिज कब होगा, मैरिज कब नहीं होगा, हम टैरो नहीं कर रहे हैं. वी आर डूइंग आकाशिक. प्लीज मैंने स्टोरी पे डाला है, प्लीज अंडरस्टैंड. यस, जैसे कि अनुप्रिया इज आस्किंग, अनुप्रिया सिंह, हर डेट ऑफ बर्थ इज 2/3/1987. शी इज आस्किंग व्हाट इज द रिलेशनशिप विद अंकित ओझा. ओके, so she wants to have an overview ki why she has met Ankit Ojha and what is the relationship between her and Ankit Ojha. So let us see from the Akashic that what is the soul connection between those two. Okay, we'll take the Shruti Jain question later on. First we take this. You have heard the both name. So let us take out the card. What is the relation with Ankit Ocha. Oh, yes, this you heard it. अब अनुप्रिया सिंह का अंकित ओझा के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट है. लेट अस टेक आउट दिस. यू हैव टू बी पेशेंट फॉर दिस बिकॉज ये आकाशिक है, इसका एक प्रोसेस होता है. हम आकाशिक रिकॉर्ड में जाकर एग्जैक्ट आकाशिक रिकॉर्ड ला रहे हैं और फिर आपको आंसर कर रहे हैं. Please take this guidance very seriously. Whatever is coming, take this seriously. This is a golden chance that you're getting it free. This sessions are very costly when you take a complete session. Okay, so Ila, tell me. There is an ancestral connection between them. They have been in past Janma. There maybe her grandfather, he would have been her grandfather, a great grandfather. It is a kind of the same family, yeah, same family. But then Okay, interestingly, आपका जो कार्ड आया है ना, मेरे पास और मेरे स्टूडेंट के पास सेम आया है. आप लोग पास्ट लाइफ में कुछ तो आपका एंसेस्ट्रल कर्मा है. Ankit might belong to a soul family of your ancestors in the previous life. कोई प्रीवियस लाइफ आपने ऐसी जी है जिसमें अंकित आपके एंसेस्टर्स की सोल फैमिली में था और वो आपकी इस लाइफ में एक साइकिल ब्रेकर, मतलब कि आप जो भी पैटर्न आपकी लाइफ में आ रहे हैं उसको ब्रेक करने के लिए, आपको वो लेसन देने के लिए आपकी लाइफ में आया. तो इफ यू आर हैविंग अ ट्रबल रिलेशनशिप विद अंकित, it means there is a lesson to be learned from this relationship and move on. Forgive, and जो भी वो lesson learn करना है, he is coming he has come in your life. There is a ancestral karma. उस ancestral karma को पूरा करने के लिए he has come into your life with a different relationship which you are sharing, not as काइंड ऑफ. जरूरी नहीं है कि हमने जो पास में हमारे कोई दादा हैं, परदादा है, फादर हैं, कोई है तो वो इसलिए, वो कहीं ना कहीं कोई आपकी एंसेस्टर सोल फैमिली से था, कुछ आपको लेसन्स देने आया है. दैट्स व्हाई यू आर हैविंग अ डिफिकल्ट रिलेशनशिप विद हिम इन दिस लाइफ. सो यू हैव टू लर्न दैट लेसन, ब्रेक दैट पैटर्न एंड मूव ऑन सो दैट आपका ये कर्मा कंप्लीट हो जाए. राइट? yeah, Let's move to the next question. I hope you have got the clarity. Okay, so Alicia is asking 22nd March 1996 उनका डेट ऑफ बर्थ है कि उनका मैरिज कर्मा क्या है. उनकी मैरिज नहीं हो रही है, तो शी वांट टू नो व्हाई दिस मैरिज इज नॉट हैपनिंग एंड व्हाट इज द कर्मा बिहाइंड द मैरिज थिंग. राइट? सो Alicia, we're taking up your question and taking out the Akashic records
of your marriage karma. Okay. See, Akashic records are so accurate that we are coming across with the same card for the same person. She has shown me the card is same card. So देखते हैं अलीशा का मैरिज कर्मा क्या है. It seems like she's having a kind of she's having a kind of resentment. She has to release it, and only when she releases that, she will attract will attract the partner very easily, and the burden is very heavy. Yeah, there is a karmic redemption and the heavy burden card. So okay, Alisha, there is something जो आपको अपने अंदर से रिलीज करना है. कुछ चीजें ऐसी हैं, आपके कुछ थॉट प्रोसेस ऐसे हैं, कुछ कर्मा हैं जो आपके सोल के ऊपर बहुत हैवी हैं, और वो आपके इस जन्म के बिहेवियर पैटर्न्स में, थिंकिंग पैटर्न्स में, गिल्ट पैटर्न में कैरी ऑन हुए. कुछ चीजें आपकी लाइफ में ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आपकी अपनी ही एनर्जी ने आपको होल्ड बैक कर रखा है. वंस यू रिलीज दैट कर्मा, वंस यू हील योरसेल्फ, यू विल अट्रैक्ट द राइट पार्टनर, और इसीलिए आपका ब्लॉकेज हो रहा है. इसके लिए मैं आपको एक स्मॉल सा रिचुअल बता रही हूँ जो आपको डेली करना है. आपने एक पिंक कलर का कैंडल लेना है, उसको बर्न करना है, उसके फ्लेम पे मेडिटेट करना है और विजुलाइज करना है कि वो जो फ्लेम है ना, वो पूरा एक पिंक रंग का गोला बनता जा रहा है, और वो पिंक लाइट का पूरा एक बबल इज क्रिएटिंग, और उस बबल को आपने पुश करना है जो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, और फिर आपने अपने अंदर उस बबल को लेना है और आपके अंदर आपको फील करना है कि आप लाइट फील कर रहे हैं. सारे आपके जो ग्रजेस हैं, जो सारे आपकी हैवीनेस है, वो लाइट हो रही है. ये प्रोसेस 5 to 10 मिनट्स करके जब आप लाइट फील करोगे, आपने दूसरा पिंक कैंडल बर्न करना है और उसके ऊपर लिखना है या आप अपने सिर्फ हाथों से भी ऐसे विजुअलाइजेशन से कि सोलमेट करके उसको बर्न करके फिर आपने विजुअलाइज करना है कि उसमें से एक बबल जो क्रिएट हो रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग द राइट पार्टनर, यू आर हैप्पी विद दैट पार्टनर. ये मैनिफेस्टेशन प्रोसेस और ये जो हीलिंग प्रोसेस है, आपको एटलीस्ट 41 डेज रेगुलर करना है. पेपर साइड कैंडल लीजिएगा ताकि वो कैंडल पूरी बर्न हो जाए एक दिन में. अगर किसी वजह से बड़ी कैंडल है नहीं बर्न होती है तो कटोरी से बंद कर दीजिए और नेक्स्ट डे उनको सेम बर्न करिए. बट याद रखिए कौन सी आपकी कैंडल है, कौन सी आपकी सोलमेट की कैंडल है. डू दिस फॉर 41 डेज. You will clear off your karma and you will start attracting the right rishtas and right partners. ठीक है? Let's shuffle and move to the other question. Please मुझे बताते जाइए आपको रीडिंग्स कैसे लग रहे हैं. You are connecting with the reading or not? Okay. See, we are doing Akashic. You're welcome. We are doing Akashic. Please, Akashic से related question. विजेता, वी आर नॉट डूइंग द टैरो. सो न्यू हाउस मिलेगा नहीं मिलेगा वो नहीं, आप उसको आकाशिक के फॉर्म में फोन करिए. व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन मी एंड संजय त्रिपाठी. रागिनी पूछ रही है 19/12/1978 व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन मी एंड संजय त्रिपाठी. किसी ने मुझसे सोल पर्पस पूछा था, वो दोबारा मैसेज अपना डाल दें क्योंकि वो शायद आगे चला गया. सो रागिनी वॉन्ट्स टू नो द कनेक्शन सोल पर्पस विथ संजय त्रिपाठी. Okay, so I'm getting one very interesting question from Monica Shah. So let's do first Ragini wala and then we'll take the Monica ka, right? So Ragini, संजय त्रिपाठी के साथ इनका क्या सोल कनेक्शन था या क्या पास्ट लाइफ कनेक्शन है? जिन जिन का रीडिंग होता जा रहा है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताते जाइए. Okay. So, I think there is a connection like they have to, it seems like there is a kind of sacrifice they have to make. There's a web of destiny. It's a destiny. It's a destiny connection. It is destined that you have to meet, and then there is a wheel of illusion. So there is a lesson for your soul to see the reality and not fall into the trap of illusion.
तो आपका जो इनका कनेक्शन है डिस्टाइन था आपको मिलना, आपके कुछ कार्मिक रिडेम्पशंस थे, कुछ कार्मिक चीजें थी जो पिछले जन्म में रह गई थी, वो पूरे आपको करने हैं, उतना टाइम फ्रेम आपको करना है। लेकिन आपके सोल के लिए एक बहुत बड़ा लेसन भी है इनके थ्रू कि आपको इल्यूजन्स में नहीं फॉलो होना है और आपको रियलिटी को देखना है। कई बार यू form a web of your own thought process, of your own things, and you fall into the trap of illusion. तो रियल लाइफ को कैसे जीना है, रियल लाइफ सिचुएशंस को कैसे डील करना है, दैट इज योर लेसन विद संजय त्रिपाठी, राइट? अच्छा, ओके। तो मोनिका शाह ने पूछा था मुझसे कि शी इज ड्रॉन टू एनिमल्स एंड बर्ड्स, व्हाट वाज माय कनेक्शन विद देम? She is very much drawn to animals and birds. What is her connection with them? So Monica, you are there. I hope जिनका भी मैं आंसर कर रही हूँ वो वहां पर हैं. Ma'am, I think she's having a good bond between them, like which she was yearning to have earlier, which was not released, so that now she's getting too much bond with the birds and animals. In the earlier stages, she was not able to connect with them, which Yes. There is a burden of judgment, ego of responsibility, and soul contract. So these birds are the repeating souls in your life. In the previous life, you might have not valued them, might have hurt them, or might have killed them. So कहीं ना कहीं उन souls के साथ आपका एक गिल्ट का कनेक्शन था, और यहाँ पे आप क्यों कनेक्टेड फील करती हैं कि आपके सोल ने एक प्रण लिया जब आपने प्रीवियस लाइफ छोड़ा कि यू विल टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड दैट दे ऑल्सो हैव अ लाइफ, दे एंड दैट्स वाई आप बहुत ड्रॉन होती हैं. आपकी एक सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज गुड. आपको इसे अगर थोड़ा सा हील करना है और अपने आप को ईज करना है तो डू समथिंग गुड फॉर देम. यू कैन बाय सम बर्ड्स फ्रॉम द पीपल एंड उनको उड़ा दो, खरीदो और उनको फ्री कर दो, खरीदो और उनको फ्री कर दो. इस तरह की चीजें आप कर सकती हैं. एनिमल्स के लिए जो आप करना चाहती हैं वो आप कर सकती हैं. ये आपको पीस देगा और आपके सोल के ऊपर जो हैवी बर्डन है पास्ट लाइफ कर्मा की वजह से वो रिलीज करेगा, राइट? सो विजय पूछ रही है कि वाई आई एम नॉट एबल टू अचीव माई ड्रीम हाउस. जो वो घर लेना चाहती है, वाई शी इज नॉट एबल टू अचीव दैट. लेट्स सी इन दी आकाशिक. आकाशिक रीडिंग्स बहुत कई बार बहुत हैवी हो जाती हैं, तो विल बी डूइंग सम ऑफ देम ओनली. ज्यादा नहीं करेंगे बिकॉज एवरी टाइम वी आर टेकिंग द कार्ड, एवरी टाइम देयर इज अ रिकॉर्ड एंटरिंग इनटू दैट कार्ड ऑफ द काइंड एंड एनर्जीज हैवी होती हैं एंड क्लींजिंग चाहिए होता है. सो विल बी डूइंग इट 1 or 2 more, राइट? सो विजेता सुनील, इनका वाई शी इज नॉट एबल टू टेक अ ड्रीम हाउस. जितने भी लोग प्लीज रीडिंग लेते जा रहे हैं, मेरा उनसे एक रिक्वेस्ट है, एज एन एनर्जी एक्सचेंज प्लीज IOST ग्लोबल, मैंने नया प्रोफाइल खोला है जो कि कंपनी नेम से और उस पर सारा कोर्स डिटेल्स रहते हैं, उसको फॉलो कर लीजिए. इट्स अ सिंपल रिक्वेस्ट इन ल्यू ऑफ द रीडिंग विच यू आर गिविंग यू. जो भी लोग रीडिंग ले रहे हैं प्लीज IOST ग्लोबल को जाके फॉलो कर लीजिए. IOST ग्लोबल, उसका आपको नीचे पोस्ट में भी कुछ कोलैबोरेशंस मिल जाएंगे, तो आप मेरे उस प्रोफाइल को प्लीज फॉलो कर लीजिए. आई एम होपफुल कि सेशन के बाद मुझे कुछ फॉलोज उस पर और मिलेंगे. प्लीज डू फॉलो IOST ग्लोबल. हमारा दूसरा प्रोफाइल है, उस पर सारे वर्कशॉप एंड कोर्सेज डिटेल्स अपडेट होते रहेंगे और कोर्सेज से रिलेटेड टिप्स भी उसमें अपडेट होंगे. तो लेट्स सी, हमने इनका निकाला था विजेता सुनील का. IOST ग्लोबल.
So that is 1 minute. This is the profile I mentioned in the comment. Okay, so इनका था. Ma'am, I think she's carrying lot of burden in her heart, and she's very much worried about judgments, and so she has to release all those burdens that is she's carrying in her heart. Like she feels that if I do this, will they judge me? Will they think bad about me? Will she cut the relationship with me? Like that, she's having lots of confusion in her own heart, which in turn is not able to attract the house. विजेता, यू आर नॉट एबल टू ट्रैक द हाउस बिकॉज आपकी सोल के ऊपर बहुत सारा बर्डन है, बहुत सारे जजमेंट का बर्डन है. आप खुद को जज कर रहे हैं, आप लोगों को जज कर रहे हैं, या आपको ये डर है कि लोग आपको जज करेंगे. आप कुछ करना चाहते हैं और सबसे पहले आप ये सोचते हैं कि लोग आपको जज करेंगे. वो आपकी सोल के ऊपर बहुत बर्डन है. और एक कार्ड मेरे पास आया है एंसेस्ट्रल नॉट का. कहीं ना कहीं पितृदोष या तो है, या आपने कुछ पिछले लाइफ में एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी का कुछ गलत इस्तेमाल करा, जिसकी वजह से इस बार आपकी प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है. तो व्हाट यू कैन डू इज कि जब आपके श्राद्ध आएंगे, अगर आपके यहाँ पे श्राद्ध होते हैं, तो आप अपने पितरों का बहुत अच्छे से श्राद्ध करो. जो लास्ट श्राद्ध होता है अमावस वाले दिन, वहां हवन करा लो. अगर वो नहीं, तब तक आपको वेट नहीं करना है, तो यू डू सम donations on the behalf of ancestors. You can give some donations to the brahman. उनको कुछ कपड़ा, खाना दान कर सकते हो आप. और कुछ पितृ दोष का बहुत बड़ा नहीं, बट छोटा सा एक संकल्प लेके किसी भी पंडित से पूजा करा सकते हैं. बट डू नॉट फॉल इनटू अ ट्रैप, बिकॉज कई बार क्या होता है कि अगर पंडित जान पहचान का नहीं है, वो बहुत लंबा लंबा खींच देते हैं और बहुत लंबा लंबा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. तो किसी भी मंदिर में जाइए, वहां पे एंसेस्टर्स के नाम का एक जोड़ा पंडित जी को गिफ्ट कर दीजिए, उनको दे दीजिए. उनको बोलिए कि भाई हम ये पितरों के नाम का देना चाहते हैं, इनका छोटा सा एक मंत्र पढ़ दीजिए और रोज पितरों को जल दीजिए. अपने घर के साउथ में एक गिलास में पानी भर के ओम पितराय नमः करके 11 बार आप दे दीजिए. आपके हस्बैंड दे दें या आपका कोई बच्चा दे दे, लड़कियां भी दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं. तो पितृदोष आपका हील होगा, तो आपके लिए घर बनने के आसार भी नजर आ जाएंगे. राइट? ओके. सो लास्ट क्वेश्चन में ले रही हूँ श्रुति अमित जैन का. शी इज आस्किंग व्हाट इज हर सोल पर्पस. इनका डेट ऑफ बर्थ है 3/5/1989. अच्छा, देन वी हैव वन क्वेश्चन प्रियंका बापत का, उनका भी ले लेंगे हम. पहले इनका ले लेते हैं श्रुति जैन का कि व्हाट इज हर सोल पर्पस. प्लीज IOST ग्लोबल को फॉलो कर लीजिए, जो भी लोग रीडिंग लेते जा रहे हैं प्लीज. ठीक है पूनम, विल टेक योर क्वेश्चन ऑल्सो, जस्ट हैव पेशेंस. हाँ पूनम, आपका क्वेश्चन लेंगे, डोंट वरी. 1 मिनट. हाँ, पहले हम इनका आंसर कर दें. Her sole purpose is to release the chains that is being tied in her hands and legs. She is emotionally tied with certain things that is not yet released. So she okay, has to तो release. आपका जो सोल पर्पस है वो उन चेन्स को रिलीज करना है जो आपकी सोल्स पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपकी सोल से रिलीज नहीं हो रही है. मे बी आपने बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी या तो ले रखा है, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रही है. दोनों ही केस हो सकते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है. मे बी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप जिनसे भाग रहे हैं, या आपने ज्यादा एक्स्ट्रा तो आपको बैलेंस लाना है अपनी लाइफ में. एंड इको ऑफ ट्रुथ का कार्ड आ रहा है जो मुझे ये बता रहा है कि देयर आर सर्टेन थिंग्स विच इज ट्रू एंड your soul or you are not accepting the truth. So your soul needs to learn to accept the truth rather than falling into the trap of your own web. ठीक है, ये आपका सोल पर्पस है. ये लर्निंग्स आपको अपने लेसन में, इसलिए आपके सामने ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहां पे आपका मन, आपके अपने बिलीफ पैटर्न होंगे, उनको शेक करा जाएगा, उनको चैलेंज करने वाले लोग आएंगे. यू विल हैव टू एक्सेप्ट द ट्रूथ दैट एवरीबॉडीज रियलिटी इज डिफरेंट. ओके, तो यहाँ पे प्रियंका बापत का हम ले रहे हैं. प्रियंका बापत पूछना चाह रही है कि जो उनके हस्बैंड हैं, उनके बीच में कनेक्शन कैसा है. मे बी इनकी लाइफ से डिस्टर्ब चल रही होगी, जो मुझे एकदम इंट्यूटिवली फील हुआ है इनकी क्वेश्चन से. इनके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1982 एंड
इनका डेट ऑफ बर्थ है 7/4/1982 एंड इनके हस्बैंड का डेट ऑफ बर्थ है 6/11/1982, 7 अप्रैल, और ये है 6 नवंबर। ओके फाइन। प्रियंका का किस टाइप का कनेक्शन है इनके हस्बैंड के साथ, जो इनके अभी करंट लाइफ के हस्बैंड है? प्रियंका बापट, ठीक है, लेट मी सी दैट। It's a soul connection. They have been into as a husband and wife, like even before, like earlier also in their past lives also, and that is the connection they are for carrying for this life also. It is a beautiful. So there connection. there is a karmic redemption. कुछ पिछले लाइफ में आपका कर्मा इनकम्प्लीट रह गया, कुछ तो शायद आपने, जो मुझे इंट्यूशन हो रहा है, आपने कुछ तो उनके साथ ऐसा करा है जो उनकी सोल कैरी कर रही है, उसके ग्रजेस कैरी कर रही है, और उनकी सोल ने आपको माफ नहीं कर रहा है, इसलिए आप वापस, आप पिछले लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ ही थे, उससे पिछली लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ थे। यहाँ पे देखिए लेसन एम्बॉडीड, एक लेसन आप दोनों की सोल को लेना है जो आप लोग नहीं ले पा रहे हैं, टू एक्सेप्ट ईच अदर, टू गो इनटू, और उनकी सोल पे भी बहुत हैवी ग्रजेस हैं आपके प्रति, तो इसकी हीलिंग करना बहुत जरूरी है। एंड एक कार्ड मुझे आ रहा है कि बार बार इस जन्म में वो आपकी पेशेंस को टेस्ट कर रहे हैं, बार बार वो ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं दैट ही इज कंटिन्यूअसली टेस्टिंग योर पेशेंस, यू आर कंटिन्यूअसली सेइंग ओके मैं ये कर लूंगी, उसके बाद वो फिर कुछ उससे बड़ा करते हैं दैट टेस्ट योर पेशेंस। So that is coming from his soul energy. That soul carries a lot of grudges against your soul. तो आप होपोनोपो प्रेयर करिए, अपने आप को फॉरगिव करिए, उनकी सोल से फॉरगिवनेस मांगिए, और आपको मैं एक छोटा सा रिचुअल बताती हूँ। आप एक व्हाइट कैंडल लीजिए, व्हाइट कैंडल को बंद करिए, उसमें एक पूरा राउंड फील करिए कि एक व्हाइट लाइट का हो रहा है, उस राउंड के अंदर दोनों को फील करिए, उन दोनों के ऊपर वो व्हाइट के आप व्हाइट में मर्ज हो रहे हैं दोनों, और उसमें फिर फील करिए कि जैसे आप दोनों खड़े हैं आमने सामने, आप दोनों के हार्ट में से एक सोल एनर्जी निकल रही है, वो मर्ज हो रही है, और वो सोल एनर्जी एक दूसरे को फॉरगिव कर रही है, और पास्ट लाइफ आपकी हील हो रही है। ये प्रोसेस आप करेंगे, उनकी सोल में से भी हीलिंग होना जरूरी है, थोड़ा सा वहां पे भी फर्क पड़ेगा, एंड फिर एक नए पर्सपेक्टिव से आप अपने रिलेशन को एक नया टाइम दे सकते हैं, ठीक है। सो आज के लिए, अच्छा एक हमने किसी को प्रॉमिस किया था, उनका और ले लेते हैं, पूनम रमेश का। इन्होंने बोला था कि उनको सब कुछ स्टक फील हो रहा है, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल्स, तो क्या ऐसा कर्मा है, क्या चीज है, क्यों शी इज स्टक, एवरीथिंग इज स्टक्ड अराउंड हर। ठीक है पूनम, हम आपका ले रहे हैं, बट आई एक्सपेक्ट कि जिनका भी मैंने लिया है वो IIOST ग्लोबल को फॉलो कर लें प्लीज। व्हेन आई एंड दिस सेशन आई हैव अ होप कि मेरे IIOST ग्लोबल जो नया प्रोफाइल अभी खोला है उस पर कुछ फॉलोज यहाँ से आएंगे। थैंक यू पूनम। हाँ, पूनम का डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1981, और उनके हस्बैंड का है 16/6/1978, तो वो स्टक फील का भी पूछ रही है, और वो ये भी पूछ रही है कि कुछ अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, फाइनेंशियल्स बेटर हो जाए, उसके लिए रेमेडी, तो वो रेमेडी हम देखते हैं, पहले देखते हैं कारण क्या है, ठीक है। सो पूनम, आई एम टेकिंग योर क्वेश्चन। एंजल कोमल, बहुत सारा हो जाएगा। आकाशिक की जो रीडिंग्स होती है ना, ये बहुत हैवी होती है, इट्स नॉट लाइक टैरो, तो ओके ठीक है, बहुत आता जा रहा है, मैं सबका नहीं ले सकती हूँ। प्लीज आप IIOST ग्लोबल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि IIOST ग्लोबल पे फिर मैं अगेन दोबारा से मैं खुद आकाशिक करने आऊंगी, तब मैं आप लोगों का लूंगी, तो उसके लिए जिनका रह जाता है IIOST ग्लोबल को फॉलो कर लीजिए प्लीज। विल ट्राई दैट। पहले हम इनका ले लेते हैं, पूनम का ले लेते हैं। There is a kind of karmic redemption she is carrying in her heart, which she has to release as soon as possible. Both of them are carrying it. ये देखिए रिलीज ऑफ रिसेंटमेंट का आ रहा है, बहुत सारे ब्लैक चेन्स हैं, बहुत सारे सोल्स हैं जो आपके थ्रू ट्रबल्ड हुए हैं पिछले लाइफ में। इन्होंने काफी कुछ पिछले लाइफ की कर्माएं जो इस समय आ रहे हैं, इस जन्म में नहीं, आपने कुछ बैड कर्मा करे, लेकिन कुछ पिछले जन्म के कर्माएं। डोनेशंस करिए, थोड़ा सा किसी गरीब लड़की की शादी करवा दीजिए, उसमें हेल्प कर दीजिए,
आपके रिलेशनशिप में बेटरमेंट आ जाएगा। वो कर्मा सील करना बहुत जरूरी है। अगर आप उतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं तो ऑन फ्राइडेज जो भी पुअर गर्ल्स होती हैं उनको खाना फीड करिए और फॉरगिवनेस प्रेयर करिए। कैंडल्स बर्न करके डेली होपोनोपो प्रेयर या फॉरगिवनेस प्रेयर करिए। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि होपोनोपो प्रेयर कैसे करते हैं तो मेरे आईओएसटी ग्लोबल को फॉलो कर लीजिए। आने वाले कुछ दिनों में आई ब्रिंग सम रेमेडीज एंड सम लेसन्स फॉर यू इन दैट, ठीक है। तो आप थोड़ा डोनेशंस करिए, कुछ हेल्प करिए पुअर गर्ल्स को जो शादी के लायक नहीं हैं, या उनको फूड से हेल्प करिए। ये आपके रिलेशनशिप में थोड़े कर्मास को करेंगे। हैवी कर्मास हैं बहुत ज़्यादा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट डोंट डिसहार्टन। आप करना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आपको बेटरमेंट होगा। अच्छा, तो एंजल कोमल क्या पूछ रही है? एंजल कोमल, कोमल जी आपका जो क्वेश्चन है ना वो आकाशिक वाला नहीं है, ये टैरो वाला है। तो जब हम टैरो करेंगे देन वी विल टेक इट, बिकॉज आकाशिक इज नोइंग अबाउट योर पास्ट कर्मास, योर रिलेशनशिप विद पर्टिकुलर पीपल, और योर ड्रीम अगर कुछ आ रहा है आपका, या आप क्यों ये चीज फेस कर रहे हैं, उस पैटर्न को ब्रेक करने की गाइडेंस है, ठीक है। तो जर्नी सोल ऑन, इनका क्या क्वेश्चन है? हाउ टू एंड द सोल टाइज विद माई एक्स हस्बैंड, कपूर सिंह। हम आपका क्वेश्चन ले रहे हैं, प्लीज आईएएसटी ग्लोबल को फॉलो कर लीजिए। जर्नी सोलोन नवनीत कौन है? ये जानना चाहती हैं कि जो इनके एक्स हस्बैंड है कपूर सिंह, उनके साथ ये अपने सोल टाइज कैसे एंड करें, ठीक है। तो देखते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, प्लीज अंडरस्टैंड। आकाशिक है, काफी सारे क्वेश्चन हमने आज लिए हैं, तो आप प्लीज आईएएसटी ग्लोबल को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब वहां पे फॉलोअर्स ज्यादा हो जाएंगे तो शायद मैं वहां पर लाइव आऊं, या अगर यहाँ पे भी आऊं तो उनको रिलेशन में। इको ऑफ बिट्रेयल का कार्ड आ रहा है। सेम ओथ अंडर एंड इको ऑफ बिट्रेयल, और उसका गिल्ट है आपके ऊपर। आपने पिछले लाइफ में बिट्रे करा था उनको, और उसका बहुत ज्यादा आपकी सोल पे गिल्ट है, और इस लाइफ में कुछ ऐसा पैटर्न हुआ है कि यू हैव बीन सफर्ड, आप सफरिंग साइड पे हो, उनकी वजह से आप सफर करे हो, और एक तरह से काइंड ऑफ बिट्रेयल मुझे नजर आ रहा है। तो वो कर्मा पूरा हो गया है, फॉरगिव कर दीजिए उनको, जाने दीजिए, अपने आप को भी फॉरगिव कर दीजिए, वो टाइज अपने आप ब्रेक हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा प्रोसेस बता देती हूँ। बैठिए आराम से, एक ब्लैक कलर का कैंडल ले लीजिए, ब्लैक नहीं मिलता है तो व्हाइट ले लीजिए या पर्पल ले लीजिए, कैंडल बर्न करिए। 21 डेज तक रेगुलर करना है तो एक बड़ा कैंडल लीजिए जिसको डेली आप 21 डेज तक 1 घंटा चला सकते हैं। इस टाइप का ग्लास कैंडल भी ले सकते हैं। आप पहले दिन उसे बर्न करिए, विजुअलाइज करिए कि उसमें आप और आपके हस्बैंड हैं, उन दोनों के बीच, आप दोनों के बीच में से एक टाइल्स निकल रही है, मतलब आपके हाथ से और उनके हाथ में एक सिल्वर कॉर्ड आ रही है जो ब्लैक नजर आ रही है। आप एंजल को बुला के विजुअलाइज करिए कि वो टाइट कट रही है, उनकी एनर्जी उनके पास जा रही है, आपकी ब्लैक एनर्जी रिलीज हो रही है और आपकी व्हाइट लाइट से आप ऑरा में फील हो रहे हैं। देन आप बोलिए कि मैं अपनी सोल से, कि मैं उनकी सोल से फॉरगिवनेस मांगती हूँ, जो भी कुछ मुझसे गलत हुआ फॉरगिव करें पास्ट लाइफ में, और मैं फॉरगिव करती हूँ जो भी कुछ गलत उन्होंने मेरे साथ इस लाइफ में करा है, एंड वी बोथ आर मूविंग अहेड इन अवर लाइफ। 21 डेज तक करिए, आपको फील होगा एक डिस्ट्रैक्शन भी फील होगा, मतलब सॉरी एक दूरी भी फील होगी, और आप अपना हील करने में आप बेटर फील करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना, हम जल्दी मिलेंगे। आई होप आकाशिक रीडिंग्स आपको हेल्प करी हो। जो पूरा सेशन होता है उसमें काफी डिटेल रिचुअल्स बताए जाते हैं, तो अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड सेशन लेना चाहते हैं वीडियो कॉल पे, 1 घंटे का पूरा सेशन होता है, उसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको पूरे रिचुअल्स बताए जाएंगे, बट वो सेशंस कॉस्टली होते हैं, नॉट लाइक टैरो। तो आप अगर वो लेना चाहते हैं मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड पूनम लिख रही है, तो इसका क्रेडिट मैं अपनी स्टूडेंट को भी देती हूँ। सो शी इज राइटिंग, मैम यू आर एंजल फॉर मी टुडे, फॉर द फर्स्ट टाइम आपके लाइव अटेंड करा एंड रियली फील्स योर ईच एंड एवरी वर्ड इज ट्रू। सो थैंक यू पूनम। ठीक है, चार्जेस आप मुझसे डीएम में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। थैंक यू सो मच। दैट वाज हेवी एक्चुअली, है ना।
कॉर्ड कटिंग कर लो 2 मिनट आंख बंद करके, हाँ, क्योंकि हाँ. कैसा लगा लाइव जाकर? It was good, ma'am. Good, ma'am. It अब was nice. आपको समझ आया? थोड़ा मैं जवाब दे रही थी तो किस तरीके से देना है हमें? Yeah, yeah. You understood how we have to communicate with the clients. So that was a quick session we done on live. So this way you can also arrange a live sessions for your clients. So there are two types of live. One, you go the Instagram live, that is free. You do it for the promotion purpose, because people will get to know that what is the reading all about, your reading style, and they will connect with you and they can book the sessions later on. And the other thing is, on the YouTube, if you go, then there is an option where you can ask them to pay something on the YouTube. There's a super chat kind of thing. If your is active, if your account is active, you can ask them. You can do a paid session also, or it is always better do a free for few and then ask for one question do free,